We're in the city of Jaipur. बिजनेस का फ्लो जो है बिल्कुल गिर गया है। भाषण तो इनके खत्म हो गए। फाइनली मराठ ट्रेडर है। भाजपा जीतेगी। Not a smart city, even though it is a smart city. Where's my money going? Are you paying taxes already? Yeah. You are? Yeah. From Jaipur, we travelled all the way to Alwar. ये गोरक्षकों ने ये अपना एक झंडा बना रहा है। पर अभी आपका लड़का देख रहा है, तो डर लगता है उसके लिए? हाँ, डर तो लगे ये सब। 3 लाख से जो ज्यादा की वोट बात हो रही है इस वक्त जो है सेकुलर लोगों के लिए जाएगा, खास तौर से कांग्रेस को। यूथ के लिए कुछ वो गवर्नमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़े, उनमें मोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाए, मोर कम्युनिकेशंस हो। देश को मोदी की जरूरत है। मोदी की जरूरत है यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। भाई जब मोदी के हमदर्द हो तो बीजेपी वोट क्यों नहीं दे रहा? वोट कांग्रेस को डाल दें। As we motorcycle through the biggest electoral exercise in the state, after Jaipur, Alwar, we reach the district of Jhunjhunu. This is the Shekhawati region of Rajasthan. Visually, it's just stunning. Arid, dry, but dotted with these spectacular havelis. Look at these frescoes. It's literally like an open-air museum. But politically, it is the cradle of the Jat vote. In the year 2013, the Jats, traditional Congress voters, had deserted the Congress. This year, this election round, the Congress hopes to get that vote back. Where does the Jat vote stand? The Shekhawati belt, comprising of Sikar, Jhunjhunu and Churu districts, was a Congress citadel before the BJP made inroads in the last assembly elections of 2013. जाट वोट ज्यादातर मतलब बीजेपी के पास रहेंगे। दोबारा बीजेपी आ रही है। कांग्रेस का तो समीकरण बिगड़ा हुआ है, खाली मुसलमानों से कोई जीता नहीं है। हम देंगे और लाएंगे बीजेपी को। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, जिसने गऊ बचाई है। शेखावटी में कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। कुल मिला के बीजेपी का माहौल ठीक ठाक है। वसुंधरा बहुत अच्छी है और समाज के लिए अच्छा काम करती है, सारी दुनिया के लिए। बीजेपी को करेगा कदार तो। ये बोलता है बीजेपी जीतेगा, हम बोलता है कांग्रेस जीतेगा। We begin our journey through the Shekhawati belt from the district of Jhunjhunu. Jhunjhunu, famous and infamous for 2 reasons. Infamous for having a sex ratio, a skewed sex ratio even worse than Rajasthan. What have been the ramifications of that? The current government says it's become much better. What's the ground situation? Famous for giving the country the maximum number of martyrs from the state of Rajasthan. It's been Jhunjhunu. What do the people in the defense think of this government? कि हम महिला शिक्षा में राजस्थान में 1 नंबर में और फीमेल सेक्स रेशियो में हम सबसे खराब 837। ये वही हमारी पे कैपेसिटी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड और हमें पढ़े लिखे के ज़्यादा होने के कारण से जो चीज़ कहाँ अवेलेबल है और हम कैसे अबॉर्ट करवा सकते हैं, बेटी को इस दुनिया में आने से कैसे रोक सकते हैं, वो हमारे को पता था। ये झुंझुनू वालों को, महिला और पुरुष दोनों को पता था और इसलिए उन्होंने वही पुरुष प्रधान समाज वाली मानसिकता को लेके बेटा ही जन्मना है तो जिस व्यक्ति के घर में पहली बेटी हुई उसने उसके बाद सेकंड राउंड में बेटा ही किया, बेटी पैदा नहीं की। So this is the only Janani Kendra in Mandava in the district of Jhunjhunu. One thing, at least my camera person Mohsin, my producer Salman and I have realized that when we were going through Jhunjhunu, it was most difficult
most difficult to get a woman voice to speak to you. Possibly what the history of this district has been, with a skewed sex ratio in favor of men, misogyny which has been a part of its culture. No woman would actually talk to you. Now this is a government-run Janani center, a pregnancy maternity center. What's really bizarre is that in a district where women even are refusing to talk to anybody, or even with us, you only have the list of gynecologists here, all male. Would any woman be comfortable in this district or in this region to go to a male doctor? स्पेशली इस एरिया में, वैसे पूरे राजस्थान में स्थिति दयनीय है। आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ। कुंवारों की फौज खड़ी हो गई है। 1000 की पॉपुलेशन पे, जो मैंने अध्ययन किया था पिछले दिनों में किया था, 1000 की पॉपुलेशन पे 15 से लेके 25 बच्चे ऐसे हैं जो 25 साल से लेके 45 साल तक की एज क्रॉस कर चुके हैं, अनमेरिड हैं, शादी होने की कोई संभावना भी नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ, मानव तस्करी बढ़ गई। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल से, आसाम से, महाराष्ट्र से, बिहार से, MP से लड़कियाँ खरीद के लाते हैं। एक व्यक्ति एक लड़की को खरीद के लाता है, कुछ दिन रखता है, 2 महीने रखता है, 2 साल रखता है, तीसरे को बेच देता है। नहीं रहे, दिक्कत उनकी भी आ रही है, तो क्या करेगा? लड़की अगर किसी के पास देने के लिए है तो लड़का मिलता है, और जिसके पास लड़की नहीं है उनका कोई विधान नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उनका शादी होना मुश्किल हो रहा है। गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़के घूमते हैं, कुंवारे घूमते हैं। तो लड़के नौकरी नहीं लगे इसलिए लड़कियों को चॉइस नहीं करती हैं, नौकरी वालों से ही करती हैं ज़्यादा शादी करने की। हर एक गांव में कितने कुंवारे मिल जाएंगे हमें? मिल ही जाएंगे हर गांव में 15-20 लड़के तो कुंवारे बैठे हैं। हाँ। शादी हुआ है? नहीं हुआ। घर में अकेले हो? नहीं, हमारे 2 बड़े भाई हैं और 1 बहन बड़ी। जो आपके 2 बड़े भाई हैं, शादी हो गया? नहीं है। कितने साल के हैं? एक 26 साल का और एक लगभग 30 साल के करीब। एक 30 साल का है। उनके लिए लड़कियां ढूंढी जा रही हैं? हाँ। नहीं मिल रही? फिलहाल पिछले 1-1.5 साल से नहीं मिली। हाँ। एक तो जो लिंगानुपात ना वो कम है लड़कियों का लड़कों के अपेक्षा। जो लड़कियां है वो शिक्षा के मामले में पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है शिक्षा दर, और जो लड़कों में जो बेरोजगारी वर्तमान में बढ़ रही है ना, लड़के जो शिक्षा तो उन्होंने पूरी कर लिया है, लेकिन जो रोजगार के मामले में अभी काफ़ी पीछे है। उसी की वजह से गवर्नमेंट जॉब। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बहुत सारे, क्योंकि जो पहले जो काफ़ी सारे लड़के रिजेक्ट किए? हाँ, 3 जगह 3 लड़के रिजेक्ट किए तुमने? क्यों? क्योंकि वो ऐसे गवर्नमेंट जॉब में तो थे पर सही लाइन में नहीं थे, इसलिए। तो मतलब 3 आवारागर्दी में ज़्यादा थे वो। तो 3 लड़कों में से चौथा लड़का चूज किया तुमने। It's a little twisted, but if you look at it, the girls of Junjunu who were unwanted earlier, and because of the skewed sex ratio today, because over 2 generations have passed with a skewed sex ratio in this district, now have the pick of the lot when it comes to the men that they want to marry. So if he's not educated enough, if he's not doing well enough, most girls will not marry that man, leaving many men in the district of Junjunu unmarried. बेटियों के प्रति जो सोच आज भी है, बेटों को प्राइवेट स्कूल में कराते हैं, बेटियों को सरकारी स्कूल में कराते हैं, तो आपको सरकारी स्कूलों में तो बेटियां ही मिलेंगी, बेटियों की संख्या आपको बहुतायत में मिलेगी। ये राजस्थान के किसी कोने में चले जाओ आप, वो उसमें लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। लिटरेसी रेट भी लड़कियों का खूब ज्यादा है। राजस्थान में हम टॉप इन 1 है। This school at T3 village is an example with equal number of boys and girls. उनकी माताएं वो तो ये कहती हैं प्राइवेट में पढ़ें, और उन पुरुष हैं वो कहते हैं कि भाई सरकारी में भेजें, बढ़िया पढ़ाई। हाँ, लड़कियों, क्योंकि सरकारी में फ्री भी बहुत चीजें मिलती हैं, और अपने लड़के को पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में बहुत सी चीजें फ्री हैं। मिड डे मील के अंदर 1 से 8 तक भोजन फ्री है। दूध योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक सभी को दूध पिलाया जाता है। कक्षा 8 की बालिकाएं जो उत्तीर्ण होकर के 9th में आती हैं उनको साइकिल प्रदान की जाती है निःशुल्क। और
पाठ्य पुस्तकें सभी के लिए निःशुल्क हैं। कक्षा 1 से 10 तक सबको किताबें फ्री दी जाती हैं सरकार की तरफ से। It was here at Junjunu that the Prime Minister launched the Beti Bachao Beti Padhao initiative. It was also here that Vasundhara Raje, the Chief Minister of Rajasthan, held many sabhas with ex-servicemen to placate them over disgruntlement on one rank, one pension. In Junjunu, the sheer numbers serving or served in the forces are the largest in the country. Ex-servicemen here are a vote bank. दफेदार लादू सिंह, गांव दीनवा लाड़कानी। सूबेदार भोपाल सिंह, गांव दीनवा लाड़कानी। हवलदार गिरधार सिंह, गांव दीनवा लाड़कानी। मुंगाराम सिपाही, दीनवा लाड़कानी। एक्स हवलदार ताराचंद, गांव दीनवा लाड़कानी। नाइक गुलाब सिंह, दीनवा लाड़कानी। एक्स हवलदार सोहन सिंह शेखावत, दीनवा लाड़कानी। 800 से 350 सर्विस कर रहे हैं फिलहाल। और एक्स सर्विसमैन? एक्स में 300 है। मतलब 600 हैं जो आर्मी से कनेक्टेड हैं 800 के गांव में। सबके सब इकट्ठे वोट देंगे। हम जो इकट्ठे वोट होकर के जितने एक्समैन है वो सब वोट देंगे। लेकिन हमारे लिए जो भी सरकार बनेगी, जो सोचेगी कि हम उसके लिए पूरा काम करेंगे, तो उसी सरकार को वोट देंगे। मोदी जी ने बहुत खुश है, उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन बात यह है जो मोदी जी किया है, नीचे जो कार्य करता है वो पूरा खरा नहीं उतर रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया है हमारे लिए। वसुंधरा जी ने नहीं किया है। वसुंधरा जी जो नीचे मजदूर कर रहे हैं, बराबर जो मांग कर रहे हैं हम, वो हमारी काफी दिनों से जो मांग है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अपने वन फाइनेंशियल और वन रैंक के बराबर जो हमारे को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बराबर खुश नहीं है। Well, especially in Rajasthan, the ex-servicemen practically come to be a vote bank, and it seems, at least that's the undercurrent that I can pick up, that they're not happy with the Bharatiya Janata Party. सीकर के बारे में बताऊँ, सीकर का जीवन 332 साल पुराना है और जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये पुराना शहर है। पुराना शहर परकोटे के अंदर आबद्ध है और 7 दरवाजे जो है इसके अंदर प्रवेश द्वार और जो बाहर के निकास द्वार है। तो जिस जगह खड़े हुए हैं इसको आज की भाषा में घंटाघर क्षेत्र कहते हैं और जन भाषा के अंदर इसको नया शहर भी कहा जाता है और अतीत के अंदर इसका नाम भैरूगंज रहा है। शेखा जी की शेखावटी, डिंगा डूंगर बाड़ू माटी, जन्मे जाट जंगला जाटी, बुदरी भूर बाणिया बाटी। इसका भावार्थ ये होता है कि शेखावटी के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं क्योंकि यहाँ अरावली की श्रृंखला चल रही है और बाड़ू रेत के टीले हैं। जंगलों के अंदर जाटे के पेड़ हैं और जनसंख्या के अंदर जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 26% राजस्थान के अंदर 26% को बिलोंग करने वाली कम्युनिटी को आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ 1% के लोगों 1% जो कम्युनिटी है वो मुख्यमंत्री बने हैं, जो यहाँ पर 12% उनके 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जो 13% कम्युनिटी है उसके 2 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी ने लगातार दोनों पार्टियों ने जाट समाज के साथ ठगा हुआ महसूस किया है। लगातार हर बार जाट समाज ने पिछले चुनाव में पूरा जाट समाज 153 सीटें कांग्रेस को दी थी और जाट समाज को ये विश्वास दिलाया गया था कि आपका ही सीएम बनेगा, परंतु ऊपर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर के नेताओं ने जाट समाज के साथ फिर धोखा किया। इस वक्त जाट जो है पूरी कम्युनिटी एक साथ हो रही है और तीसरी जो पार्टी यहाँ पर जो उदय हो रहा है जिसका दोनों कांग्रेस और बीजेपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जाट जो है पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ खड़े। लोकतंत्र के अंदर ये विडंबना है कि हम जो जातिगत समीकरण बैठाते हैं, परंतु दुर्भाग्य तो यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने जातिगत समीकरण बैठा करके अपने जो है प्रत्याशियों को जाति के आधार पर टिकट दिए है। जाट वोट का सवाल यह है कि जाट वोट जो है इकट्ठा नहीं जाएगा। अतीत के अंदर लोकदल में भी जाट था, भारतीय क्रांति दल में भी जाट था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जाट रहा है। जाट वोट के बट जाने से फायदा जो है कांग्रेस को अधिक होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी इस समय चल रही है कि जाट हमारी दूरी है और बीजेपी के शासन के अंदर जाटों के बड़े बड़े नेता बीजेपी के अंदर आ गए हैं और यदि ये बट जाएंगे तो बीजेपी को जो इससे थोड़ा घाटा भी हो सकता है और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। From the Junjunu district, we are in the Sikar district. Now, Sikar is the heart of
the lakh churis. If you've seen lakh bangles, you see them all across the country. It comes right from here, from the Sikar district in Rajasthan. I'm sure most of our viewers would know that Rajasthan is the hub of arts and crafts, but nobody has ever quite seen the artisans. Nobody's quite seen the kind of effort that they put in, get very little back for what they give. What do they want from the government this time around? What do they want that they haven't got till now from any government in Rajasthan? यही साइज होगा ना मेरा? बड़ा है ये काले में है। क्या चाहते हैं जो अभी सरकार आएगी उससे? नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, जैसे हमारे नहीं सभी दुकानदार है, सभी शॉप है, सबकी है, सबको नुकसान हुआ है, तो उसके लिए कुछ हमारे लिए कुछ ऐसी स्कीम चलाए जिससे हमें बैंकों से लोन मिल सके सही रेट पे, कम ब्याज पे, तो हम हमारे इस काम को थोड़ा आगे ले जा सकें। फायदा है लाख के काम में? फायदा नहीं, बचत बिल्कुल भी नहीं है, मटेरियल सारा ही महंगा आता है। पहले वाली सरकार ठीक थी, कांग्रेस। जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें ये देख करके गए हैं काम, वही कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है जो नई सरकार आएगी? हमारी तो उम्मीद यही है कि हमारा रोजगार आगे बढ़े और अच्छा हमें उनसे अब बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिले। ये जो अभी सरकार है कर रही है सपोर्ट? कुछ भी नहीं हुआ, जो पहले जो बिजनेस था उससे बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, बहुत ज़्यादा डाउन गया है। वोट देने का क्या फायदा, फिर तो कोई फायदा नहीं। पर देते क्यों फिर? तो फिर देते तो ऐसे देते, सारी दुनिया देती है तो हम भी दे देते हैं, क्या करें। So we're walking through the old city of Sikar. Now every city, especially small cities, have these relics, these legends. Well, there's one store here. Apparently this small tiny store used to be the favorite of the Chief Minister of Rajasthan, the former Chief Minister of Rajasthan, Bhairo Singh Shekhawat. Now when Bhairo Singh Shekhawat became the Vice President of India, it is from this tiny store that laddus used to be sent all the way to Delhi for him, because the laddus here apparently are legendary. बहुत वर्षों तक आए हैं, शुरू राजनीति में आने से पहले से ही आना शुरू था, पिताजी के दोस्त रहे हैं, पुलिस में सर्विस थी तब से ही। तो जो यहाँ के लड्डू दिल्ली जाते थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे? वाइस प्रेसिडेंट जिस रोज शपथ ग्रहण समारोह वहाँ, उस रोज भी कम से कम 1 क्विंटल लड्डू गए थे यहाँ से। जी। तो आजकल आप लड्डू कौन सी पार्टी के यहाँ बंद के जा रहे हैं? सभी पार्टियों के जा रहे हैं। सभी पार्टियों के जा रहे हैं। आपको कौन सी पसंद है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो आपके लिए लड्डू भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस बार राजस्थान में? बिल्कुल 100% मिलेगा। चलिए मुझे तो खिला दीजिए। So let's see the true taste of the laddu. It's actually very good, very very good. Well, it is here right outside this laddu store that we've met the student leader of the Jat Sabha. आपका नाम? My name is Kanaram Jat. कानाराम जी, अभी इस वक्त किसकी लहर लग रही है आपको यहाँ पर? अभी लहर तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब की पार्टी भाजपा की है। जाट को क्या चाहिए? जो जाट समाज है उसको क्या चाहिए? युवा बेरोजगार हैं और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और ये शेखावटी जो भूमि है वो शहीदों की भूमि है, इसलिए यहाँ खूब वीर शहीद इस धरती से हैं। उसके आधार से जिस प्रकार से हमारे उपेक्षित रखा गया है दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियों ने उपेक्षित रखा है, जो मिलना चाहिए था वो दोनों पार्टियों ने नहीं दिया। I'd like to believe everybody has a few quirks, so I can talk about mine. Now, every time I'm on tour, especially election tours, I like to buy a token, which possibly to me means it's going to give me a lot of luck through the course of the tour. This time around, that token is these lakh bangles that I bought, and I do hope that they give us a lot of luck through the tour. Our election tour, Motorcycle Diaries Rajasthan, because we have a lot of kilometers to cover. So from the cradle of Jat politics, Sikar, we go to the cradle of Rajput politics, Nagaur.
Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.